Welcome to the demolition of Little Hearts, the cyber equivalent of a real-world nuclear weapon. The sacred kill that can destroy mankind. The possessor of this game will rule the world. A very high-tech robot designed by artificial intelligence runs this whole program. The full version of Little Hearts will create miracles. The eyes of that model, or the program with such AI hypnosis scripts that will store into the eyes for even 20 seconds. You're done. The users of Little Hearts would be gradually hypnotized by its eyes, and his or her control will be gradually taken over by this game. All the time, the users will be in a trance, living in a dream world, a virtual world, controlled by robots. And finally, when he or she will come under full control, then the real fun begins. The bidding of Little Hearts will start from 1,000 bitcoins. If you're associated with the terrorist groups, your work will be much more simpler. All over the world, whoever will be downloading this game, they will be turned into human robots under your control. The members of your group will be distributed worldwide, but nobody will be able to identify each other. All over these days, the religious doctrines that you need to teach for creating terrorists will be easily handled by artificial intelligence. हेलो मैं इंद्रदेव। हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसी समय मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब डेबिट हो गए, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आप इससे जुड़ी जानकारी दे सकते हैं मुझे? 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ सर, लग रहा है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। आप अपने मोबाइल से सभी बैंकिंग ऐप तुरंत डिलीट कर दीजिए और किसी और सिस्टम से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। हैक? ओके। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या हुआ है? नहीं, मैं ठीक हूँ। श्योर? हेलो। So, how did you enjoy the trailer, Mr. Indradev? Control your emotions, as you won't be able to stand for the entire movie. कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। Okay, all the best.
Now let me introduce the CEO of DG Savior, the world's leading antivirus provider, Patrick Robertson. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी ने उठाया है एक ऐतिहासिक कदम साइबर वर्ल्ड में। हम लोग एक एंटीवायरस लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है हीलर। दैट वुड बी एन आंसर टू ऑल द प्रिवेलिंग मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड malwares एंड spywares। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल ही फ्री होगा। कोई भी इसे हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है बिना एक पैसा खर्च किए। सर एंटीवायरस सभी को फ्री में प्रोवाइड करना ये सच में बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरी एंटीवायरस कंपनी शायद अपना बिजनेस लूज कर देंगी इस वजह से? Look, young lady, viruses itself are unethical elements prevailing in the cyber world. So the prevention of virus should be a moral duty of the society. I request all the antivirus companies in the world to provide their antivirus for free. Together, we will focus on building new softwares that can take mankind to the next level. Okay, मैं Let's आती हूँ। make a better and the most secured cyber world. क्या बात कर रहे हैं सर? 1 महीना होने को आया है और भैया अभी तक लापता है। अभी तक आप लोगों को भैया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। Is it acceptable? सुन भाई, तुम्हारा भाई कोई वीआईपी नहीं है जिसके लिए मैं थाने का सारा काम छोड़कर उसे ढूंढने लग जाऊं। बाय द वे, क्या पक्का यकीन है कि उस दिन तुम्हारा भाई घर से ऑफिस के काम के लिए ही गया था? आपसे मैं कितनी बार एक ही बात बोलूं सर? मैंने बताया ना आपको, उस दिन भैया के ऑफिस में हियरिंग का कुछ काम था, वो जल्दी घर से निकल गए थे। उन्हें लौटने में जब देर हो रही थी तब हम लोगों ने फोन किया तो पता चला कि वो ऑफिस से जल्दी निकल गए। उसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लग रहा है सर इसके पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश है सर। एक्सक्यूज मी। सौरभ, मर्डर वाली फाइल देना। हाँ चाचू, पापा के बारे में कुछ पता चला? बताइए ना चाचू। नहीं बच्चा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन मम्मा तो बोल रही थी कि आज आप पापा को लेकर आओगे। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा चाचू। बच्चा अभी मैं थाने में हूँ, बाद में बात करूंगा। ओके ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके ठीक है। भाभी के सामने अब मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। आपको एक काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। आपको एक बार मुर्दा घर जाना होगा। मुर्दा घर क्यों? एक लाश मिली है, उसकी पहचान करनी होगी। चलिए। अच्छा, आपके भैया की कोई एक्स थी क्या? मतलब कोई गर्लफ्रेंड? व्हाट? नहीं, आइए। अशोक, कवर हटाना जरा। तुम सभी की बातों पर इतना रिएक्ट क्यों करते हो? देखो दिया, बचपन में ही मैंने माँ बाप को खो दिया था। भैया और भाभी मेरे माँ बाप के जैसे हैं। इन लोगों के जैसे अच्छे इंसान मिलते नहीं हैं। जब इन लोगों के बारे में कोई बेकार की बात करता है तो। अच्छा, पुलिस तो इंद्र भैया के लैपटॉप से सारी फाइल कॉपी करके ले गई थी ना? उनके लैपटॉप से कुछ मिला उन्हें? अरे वो लैपटॉप भैया का पर्सनल लैपटॉप नहीं है। पर्सनल लैपटॉप तो भैया लेकर गए हैं। सुनो, तुम्हें एक बात मैंने नहीं बताई। इस बार आखी के बर्थडे के दिन इंद्र भैया के पास एक कॉल आया था और वो फोन आने के बाद से ही come on. बस मुझे नहीं। इंद्र भैया, आपकी तबीयत खराब है क्या? अच्छा ना? मुझे तो कितना अच्छा लगा। भैया लापता होने के कुछ दिन पहले बहुत खोए खोए से रहते थे। पता नहीं, भाभी ने भी ये बात नोटिस की थी। तब लगा कि
ऑफिस के काम का कुछ प्रेशर होगा शायद, ध्यान ही नहीं दिया। तुम एक काम करो, तुम भैया का कमरा एक बार फिर अच्छे से सर्च करो, कॉपी, किताब, फाइल, पेपर, जो कुछ भी है सब कुछ। शायद हम लोगों को वहां से कुछ मिल जाए। देखो, पुलिस इस मामले में हम लोगों की कोई मदद नहीं करेगी। जो करना है वो हमें खुद करना पड़ेगा, ठीक है? देखो, अब मुझे जाना पड़ेगा। किसी पॉलिटिकल लीडर का पेट खराब हो गया है तो अब ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बन गया है। चलती हूँ, अब इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर आम आदमी को बताना पड़ेगा। बाय। चाचू चाचू पापा कहाँ है? पापा ऑफिस के काम से कहीं दूर गए बेटा, बहुत दूर गए हैं। दूर गए हैं? मतलब 7 समुंदर 13 नदी के पार? हाँ हाँ, वहाँ पर फोन का नेटवर्क नहीं होता ना, इसलिए पापा से बात नहीं हो पा रही है। सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहा हूँ। क्या गेम में किस लेवल तक पहुँच गई तुम? लेवल 4। अच्छा, लेवल 4? हाँ, पापा भी उतनी दूर नहीं पहुँच पाए, तुम तो पहुँच गई। हाँ, पापा की जैसे बेटी को भी नशा है। मुझे पता है कि वीडियो गेम ही सारी परेशानियों की वजह है। बच्चा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, फिर हम दोनों मिलकर एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे। ओके, जाओ जाओ। भाभी, मैं भैया का स्टडी रूम फिर से एक बार अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। मैंने उस कमरे में सब कुछ उलट पुलट करके देख लिया अरण्य। फिर भी मैं एक बार और देखना चाहता हूँ। देखो, जो मन में आए करो। पहले खाना खा लो। भैया लापता होने के कुछ दिन पहले से ही परेशान लग रहे थे। इस बारे में आपको उन्होंने कुछ बताया था? वो अपनी परेशानियां किसी और के साथ शेयर करते ही नहीं थे। ये तो तुम जानते हो ना। यहाँ जो पेनड्राइव फेंका हुआ है वो क्या है? वो मैंने ही फेंकी है। मतलब तुम्हारे भैया के स्टडी रूम में मिली थी। एक किताब के अंदर पेज मार्क की तरह यूज कर रहे थे। मुझे देखकर लगा कि खराब हो गई है। टेक्स्ट फाइल का ये एड्रेस जो मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद कर देगा,
ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उन लोगों के जाल में बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ। मेरे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए मेरे परिवार और इस दुनिया के लाखों इंसानों के बारे में सोचकर मुझे ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। हो सकता है कि उसकी वजह से मेरी मौत भी हो जाए। वो लोग कितने निर्दयी हैं, हम लोगों के जैसा साधारण इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता है। सुनो, अरे नहीं, कुछ मिला तुम्हें? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। ओह, बहुत रात हो गई है। रात भर जागकर अपनी तबीयत खराब मत करो। हाँ, बस जा रहा हूँ सोने। मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। वीडियो गेम खेलना मेरी जिंदगी का एक नशा और आदत बन गई थी। दुनिया के सारे अच्छे अच्छे गेम खेलना मेरा पैशन बन गया था, और मेरा यही पैशन मेरे लिए मुसीबत बन गया। इसी वजह से सोशल नेटवर्क के जरिए मेरी यूलिस नाम के एक लड़के से बात होती थी। उसने मुझे एक ऐसी तरकीब बताई जिसके जरिए मैं बिना पैसे के दुनिया भर के अच्छे अच्छे गेम्स डाउनलोड कर पाऊंगा। तब मुझे यूलिस ने डार्क वेब के बारे में बताया। इस डार्क वेब ने मेरे लिए वीडियो गेम डाउनलोड करने की एक अलग ही दुनिया खोल दी। लेकिन यूलिस ने मुझे सतर्क किया था कि किसी भी उल्टे पुल्टे लिंक पर मैं क्लिक ना करूं। लेकिन मेरी लालच बढ़ती ही चली गई। ये डार्क वेब मैं खुद ही एक्सप्लोर करता था। वहां पर मुझे एक 3D पॉर्न का साइट दिखाई दिया। मैं उसे क्लोज कर ही रहा था कि लेकिन डर के पीछे हट जाऊं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा हूं, और इस मामले में मेरी बस एक इंसान ही मदद कर सकता है। मैं अभी उसी के पास जा रहा हूं।